اللہ کے محبوب پیغمبر نے دعا فرما دی، اے اللہ اب تو اسلام کو عزت دے، اور میں دو بندے پورے عرب سے چنتا ہوں، پورے مکہ سے چنتا ہوں، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن ہشام، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے۔ اگر میرا انتخاب ہے تو میں عمر بن خطاب کو منتخب کرتا ہوں۔ خلاف کعبہ کو پکڑ کر، ان حالات کو سامنے رکھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ دعا مانگی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کے دن جب صدیق اکبر کو مار پڑتی ہے، یہ جمعرات کا دن ہے جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ ادھر مجلس بیٹھی حرم میں ابو جہل نے کہا اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، کب تک ہم اس کو یوں دیکھتے رہیں گے؟ ہمارے معبودان کی بے عزتی ہو رہی ہے، کب تک برداشت کریں گے؟ کوئی تو ہو مرد جوان جو یہ کام کر گزرے کہ وہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالے۔ جب یہ بات اس نے کی، عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، کہا اس کام کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا پورے مکہ میں تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ یعنی ایسا اللہ نے روب اور دبدبا اور بہادری تو اعلیٰ مثال، آگے تفصیلی واقعات آ جائیں گے۔ تو بار کا مختصر یہ کہ عمر ابن خطاب تلوار لے کر چل پڑے، پوچھتے پاچھتے نبی کہاں ہیں؟ تاجدار ارکم میں ہیں۔ راستے میں نعیم سے ملاقات ہوئی، عمر خیریت تو ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہٹ جاؤ، آج میں اسلام کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اسلام کا دروازہ بعد میں بند کرنا، اسلام تیرے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصہ اور بڑھ گیا، میرے گھر میں اسلام آ گیا۔ وہیں سے ارادہ ترک کیا اور پہنچے بہن کے گھر۔ وہاں پر حضرت خباب انہیں قرآن کی تلاوت سکھا رہے تھے۔ دروازے پہ جب دستک دی عمر ابن خطاب نے، سمجھ گئے عمر آ گیا۔ خباب تو چھپ جاتے ہیں، اندر داخل ہوئے اور سعید بن زید سامنے آئے اور عمر ابن خطاب نے کہا میں نے سنا ہے تم صابی ہو گئے ہو۔ اس دور میں جو ایمان لے آتا اس کو صابی کہا جاتا تھا، یعنی بے دین ہو گئے ہو۔ سعید بن زید نے کہا عمر مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اگر ایک دین حق ہو اور دوسرا دین حق نہ ہو تو کس دین کو قبول کرنا چاہیے؟ جب یہ بات سعید بن زید نے کی تو عمر ابن خطاب کے تمانچے نے اس کا جواب دیا۔ سعید گر جاتے ہیں، منہ لہو لہان ہو جاتا ہے، بہن چھڑانے آتی ہے، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ بہن بھی لہو لہان ہو جاتی ہے، بہنوئی بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب بہن کے خون کو دیکھا، بہن تھی، بھائی تھے اس کے، شفقت و پدری سارے معاملات موجود تھے، تو تھوڑا سا غصے پہ قابو پایا اور ٹھہر گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ وہ کیسا کلام ہے کہ جس میں تمہارے اندر یہ بجلیاں بھر دی ہیں؟ بتاؤ مجھے بھی تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہنے لگی اس عالم میں بھی کہ تم نجس ہو، تم ناپاک ہو، یہ کلام پاک ہے، پاکیزہ ہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جاؤ وضو یا غسل کر کے آؤ، پھر تمہیں ہم یہ اوراق دیں گے۔ مختصر یہ کہ آپ نے غسل کیا، واپس آئے، خباب اتنے میں باہر نکل آئے اور جو آیات وہاں پر سامنے آئیں جو عمر ابن خطاب نے تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پڑھتے چلے گئے، جب اس آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ اندھیرے چھٹ گئے، وہ سارا غصہ ختم ہو گیا۔ گویا وہاں پر عمر ابن خطاب اپنے وجود کو دھو رہے تھے اور پروردگار عمر کے دل کو دھو رہا تھا۔ وہاں اپنے سامنے ظاہری نجاست کا اتار رہے تھے، پروردگار ان کے اندر سے کفر کی نجاست کو دھو رہا تھا۔ بہنوئی کو ساتھ لیا، کہا مجھے لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، تلوار ہاتھ میں تھی، صحابہ پریشان، عمر آ گئے، حمزہ اندر موجود تھے، کہا آنے دو، اچھی نیت سے آئے تو استقبال کریں گے، اگر نیت اچھی نہ ہوئی انہی کی تلوار سے گردن تن سے جدا کر دیں گے۔ دروازہ کھلا، دو صحابہ نے پکڑ لیا عمر ابن خطاب کو بازوؤں سے اور کہا مجھے لے چلو اپنے محبوب کے پاس۔ وہاں پر پہنچے، قدموں میں اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو ایمان اور اسلام قبول کر لے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ایمان قبول کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، عمر ابن خطاب
खत्ताब ने कलमा पढ़ा, अल्लाह के महबूब पैगंबर तकबीर बुलंद की, हज़रात सहाबा ने तकबीर का नारा बुलंद फरमाया और पूरे अरब की ज़मीन पर गोया वो उमर इब्ने खत्ताब का नारा गूंज गया। किसी शायर ने बड़े अजीब अंदाज ने इस सारे वाक़े की मंजर कशी की कि जब वो तलवार लेकर आ रहे थे तो कहने वाले ने अल्लाह के महबूब पैगंबर को बताया उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने क्या फरमाया, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पर, वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। वो अंदर दाखिल हुए, ईमान कबूल किया। अल्लाह के नबी ने पूछा, उमर वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, अचानक आज ये तब्दीली बताओ कैसे आई है। उमर ने जवाब दिया, सुनी मैंने बहन से वो जो तू लेकर किताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। अभी सहाबा मौजूद, अल्लाह के नबी उठे, वुजू किया, सहाबा वुजू कर रहे। उमर ने कहा का ये क्या है, कहा वुजू कर रहे हैं, फिर क्या होगा, नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, कहाँ, यहीं पर बैतुल्लाह में क्यों नहीं। उमर जी तो मेरा भी चाहता है, तेरी बरादरी वाले आड़े आते हैं। उमर ने गूंज कर कहा, मेरे ईमान लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, बढ़ेंगे आज काबा में, वो रोके जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा। उमर इब्ने खत्ताब आया, आका चलिए मैं आगे चलता हूँ और मैं तो ऐलान करते हुए जाऊंगा, ओ अबू जहल, उतबा, शैबा, सारे सुन लो, आज उमर ईमान ले आया है। अब कोई उमर के रास्ते में आएगा, या वो रहेगा या उमर रहेगा। शायर ने कहा, हज़रत अली एक तरफ, हज़रत हमजा एक तरफ। शायर बोल उठा, शुजाओं का शुजा आया, शुजाअत ने सलामी दी, फहाशी पर सवाल आया, अदालत ने सलामी दी, जबर टूटा मिटी जुल्मत, अदल का आफताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। कहा पर आका आज के बाद नमाज बैतुल्लाह में होगी, मैं आगे चलूंगा। दस्तक दे दरवाजे पर, उमर दस्तक दे रहे हैं दरवाजों पर। हाँ, उमर ईमान ले आया है, आज उमर ईमान कबूल कर चुका है। निकला तो था ईमान का दरवाजा बंद करने, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि जब ये उमर दुनिया से जाता है तो 22 लाख मुरब्बा मील पर इस इस्लाम के झंडे गाड़ कर जाता है। तो ये अल्लाह के महबूब पैगंबर को 40वें ये मुसलमान थे, 40वें नंबर पर, 39 ईमान ला चुके थे, 40वें उमर इब्ने खत्ताब ये 6 नबवी में ईमान लाए। अब उसके बाद अगला वाक़या हिजरत सानिया का, तफसील अगले जुमे में रस हो जाएगी। तो खुलासा सारी बात का ये है कि इस्लाम बड़ा अजीम दीन है। इस्लाम के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े अजीब हीरे पैदा किए, माओ ने बड़े बड़े लाल जन्म दिए कि जिनमें एक लाल और हीरा उमर इब्ने खत्ताब था। आज का काफिर क्या उठा, एक उमर और पैदा हो जाता, दुनिया से कुफर का नामो निशान मिट जाता। 1400 साल के बाद अल्लाह ने उमर की हैबत, उसकी जलाल और उसकी अजमत को कैसे दुनिया वालों के सामने रखा। उस दुनिया का कुफर उस उमर से डरता था, आज की दुनिया का कुफर उसी के सरनामी मुल्ला उमर से डरता था। उस दौर के अंदर अगर उमर ने कैसरो किसरा से टक्कर ली, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, उनके पड़खच्चे उड़ा के रख दिए और सारी सल्तनत वो सब ताराज करते हुए उमर इब्ने खत्ताब के लश्कर, उसके काफिले आगे बढ़ते चले गए और सारे खजाने उमर इब्ने खत्ताब के कदमों में मदीना में पहुंचे। आज 1400 साल के बाद का दुनिया कुफर सारा मिलकर 47 ममालिक जमा होकर आ गए, लेकिन उसी उमर के अदना गुलाम एक मुल्ला उमर ने उस दुनिया से टक्कर ली, अकेले तने तनहा। काफिले यहाँ से गए, उलमा यहाँ से गए। अरे क्या करते हो, वो आलमी ताकत है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास वो टेक्नोलॉजियां हैं कि जो पहाड़ के अंदर रेंगते कीड़े को देख लेते हैं, जो जमीन पे पड़े अखबार के तराशे की खबर को पढ़ लेते हैं, उनसे टक्कर लेते हो। तुम्हें नहीं मालूम वो कितने ताकतवर हैं। मुल्ला उमर ने एक जवाब दिया, अगर तुम्हें नहीं मालूम वो कितने ताकतवर हैं तो उन्हें नहीं मालूम मेरा अल्लाह कितना ताकतवर है। तो ये अल्लाह दिखाता है, ये हीरे ये लाल अल्लाह ने हर दौर में पैदा किए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है कि कलमा गो तो मैं भी हूँ, नबी का नाम लेवा तो मैं भी हूँ। जिस नबी का कलमा मुल्ला उमर ने पढ़ा, उसी का कलमा मैंने और आपने पढ़ा। जिस तौहीद का अलंबरदार मुल्ला उमर बना है, उसी तौहीद के अलंबरदार मैं और आप भी तो हैं। जिस कुरान का मुताला और जिस कुरान की गहराइयों में मुल्ला उमर उतर कर
ताकतों से टकरा जाता है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनो, कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। अगर तुम अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर ईमान वाले हो तुम पूरी दुनिया पे गालिब रहोगे। ईमान कहाँ से बनेगा? इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, ईमान चाहिए, कुव्वत चाहिए। आओ रब के कुरान को खोलो, जब रब का कुरान खुलेगा तो ईमान के बंद दरीचे खुलेंगे। एक एक आयत कुरान की पढ़ते जाओ, ईमान के जीने चढ़ते जाओ। इसी कुरान की दावत की बुनियाद पर, इसी कुरान वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, कि जिसने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया अल्लाह उसके लिए काफी है। तो उसने तवक्कुल करके दिखाया। काश मैं भी उस अल्लाह का फरमाबरदार बन जाता, मैं उसी मोहम्मद का सिपाही बन जाता। काश मैं कुरान को उठाकर और उसको रहनुमा बनाकर उसकी पैरवी करने वाला बन जाता, तो आज मैं भी दुनिया पे गालिब होता, आज मेरे नबी का दीन दुनिया पे गालिब होता, आज अल्लाह की हाकमियत दुनिया पे कायम होती। लेकिन नाम लेवा अल्लाह के, लेकिन उसके दुश्मन के निजाम पर राजी हो चुके हैं। नाम लेवा मोहम्मद अरबी के और उन्हीं के गुस्ताखों के चेहरे और निजाम को लेकर हम अपनी बगले बजाते नहीं थकते। कुरान को रब की किताब मानने के बावजूद कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा? जो हो रहा है, जो सितम ढाए जा रहे हैं, जो लाशें गिराई जा रही हैं, ताकत कुव्वत खत्म होती जा रही है। उम्मत के वजूद से ये ईमानी रूह जब से निकली है, शरादा बिखर के रह चुका है। जब एक वजूद उसकी रूह निकल जाती है, अगर जमीन पे रखोगे कुछ अरसे के बाद उसके आज़ा मुंतशिर हो जाएंगे। कोई एक उठा के ले जाएगा, कोई दूसरा उठा के ले जाएगा। आज उम्मत के इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से उम्मत की ईमान की रूह वजूद से निकल चुकी है। आज उम्मत का वजूद ऐसे ही जमीन पर पड़ा है, कोई हाथ ले जाता है, कोई बाजू ले जाता है, कोई सर ले जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है। उनका एक कुत्ता मारो, वो अपने एहतजाज लेकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और हमारे कितने मासूम कलियां जिनको रौन दिया गया, कितनी बहनों की इज्जतों को तार तार कर दिया गया। एक आफिया सिद्दीकी को 2 अरब मुसलमान छुड़ाने की ताकत नहीं। अपनी ताकत का अंदाजा लगा लो। अम्मत मुस्लिमा 56 ममालिक हैं, उनकी फौजें भी हैं, उनके लश्कर भी हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन ताकत नहीं है। क्यों? ईमान नहीं है। ईमान होगा तो 2 और 313 भी निकलेंगे, तो हजारों पे गालिब आ जाएंगे। और ईमान नहीं होगा तो ये 2 अरब के लोग गोया के सैलाब के ऊपर बहने वाले जहाज की मानेंगे, जिनकी कोई वक़्त नहीं होगी। तो बार कह, ये सीरत का मौजू इसी वजह से सामने रखा ताकि हम अपने माजी के आईने में अपना चेहरा देख सकें कि हम क्या थे, हम कौन थे और अब हम क्या बन चुके हैं, हम कौन हो चुके हैं। तो इसलिए ये बातें बताने का मकसद कानून की लज्जत नहीं है, ये बातें करने का मकसद टाइम पास करना नहीं है, ये बातें करने का मकसद बस ठीक है रस्मी गुफ्तगू है, मैं अपनी बात करके निकल गया, अब अपनी बात करके चले गए। तो रब के दीन का पहरेदार कौन बनेगा? नबी की हुर्मत का पहरेदार कौन बनेगा? नामूसे सहाबा के अलम को कौन उठाएगा? किसने आकर जान देनी है कि जान दिए बगैर इनकलाब नहीं आता। जो धर्मों की बुनियाद पर इनकलाब की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बुनियाद पर इस्लाम की बात करते हैं, वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, जिन्होंने कुरान को नहीं समझा कि रब के कुरान ने क्या कहा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकमियत तो अल्लाह की है। हमने हाकमियत किसको दे दी? अवाम को। जो फैसला अवाम का, जो फैसला पार्लियामेंट का, वो हमारा। रब का कुरान इसकी तायद नहीं करता। तो इसलिए कुरान की तरफ आए और महबूब पैगंबर की सीरत को पढ़े, टाइम दें उसको आईना बनाकर जिसमें अपना आप भी देखें, फिर हमें पता चले कि कौन सी नोक पलक संवारने वाली है। अल्लाह हमें ये फिक्र नसीब फरमाए और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर